محترم مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ دوستو بزرگو، اس آیت کا تعلق اس مہینے سے ہے جو اب یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ کل 15 تاریخ اس رجب المرجب کی ہے۔ اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ مسجد حرم اور مسجد اقصی کا تعلق بھی اسی مہینے میں جوائنٹ ہوا، اور اس مہینے کو بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بزرگوں سے بھی نسبت ہے۔ ہندوستان کے بزرگ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کا اسی مہینے میں چھٹی شریف میں کل شریف ہوا، اور 12 آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو عوامی زبان ہے کہ کنڈوں کا چاند دکھ گیا، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مہینے میں نیاز بھی دلاتے ہیں لوگ، اسے بڑے اہتمام کے ساتھ نیاز کرتے ہیں، کنڈے خوانی کرتے ہیں، کنڈے بناتے ہیں، پڑیاں بناتے ہیں، کھیر بناتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو بلا بلا کر کھلاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور امام جعفر صادق، دیکھیے کوئی نہ کوئی وجہ سے آدمی کی پہچان ہوئی، اور یہ مقام ملا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ لوگ جو یاد کرتے ایسے ہی نہیں کسی کو یاد کرتے، کوئی نہ کوئی مرتبہ، کوئی نہ کوئی مقام جو حاصل ہوا ہے وہ کسی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا بھی بڑا عجیب بچپنا گزرا، کہ آپ نے بچپنے کے عالم میں ایک شخص کو جنت بیچی تھی۔ کسی کا کوئی مسئلہ تھا تو آپ نے ایک جنت کے بدلے میں اس کو دیا تھا، بولے ہم تمہیں جنت میں مقام دیں گے، جنت میں محل دیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ جو سامنے والا آدمی تھا، جو سامنے والا شخص تھا، اس نے کہا کہ آپ گارنٹی لیجئے کہ آپ جنت کیسے دے سکتے ہیں، تو آپ نے خط لکھا۔ وہ خط لکھنے کے بعد میں وہ کہا کہ ان کو دے دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کر دی، جنت میں محل دے دیا۔ پھر جب اس کا انتقال ہوا تو اپنے گھر والوں کو، بچوں کو اس نے نصیحت کی کہ آپ لوگ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رقعہ ہے یہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب کفن میں رکھ دیا گیا، انتقال ہو گیا، اب گارنٹیڈ جنت۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو مانا گیا ہے یا مانیتا پراپت ہوا ہے، جنت دے دی، لیکن
गारंटी कैसे मिले, पता कैसे चले कि जन्नत मिली या ना मिली? हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो रुक्का दिया था वो उनके कफन में रख दिया गया, और जब उन्हें दफनाया गया तो उसके दूसरे दिन के बाद एक रुक्का उनकी कब्र से बाहर पड़ा हुआ था। रेशमीन कपड़े पे लिखा हुआ एक रुक्का लिखा हुआ था, और उस पे लिखा हुआ था कि ये जाफर, आपके जन्नत के बदले में आपने जो जन्नत हमें दी थी वो जन्नत हमें मिल गई है, वो महल हमें मिल गया, मसला हल हो गया। यानी अगर इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि इमाम हुसैन के बेटे हैं ना इस खानदान, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। ऐसे फरमाया ही नहीं है बल्कि हैं। जब एक पर पोता हजरत इमाम हुसैन का पर पोता जन्नत दे सकता है, और रुक्का जन्नतुल बकी में निकला और लोगों ने देखा कि हाँ जन्नत उसके एवज में मिल गई, तो लोगों ने जो देखा इतनी दिलचस्पी बढ़ गई, बोले जन्नत मिलती है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 22वीं सबको आपको गौसियत के मर्तबे पर जब फाइज हुए तो आपने खीर की वो मिट्टी के कासे लिए और मिट्टी के प्याले लिए और उसमें खीर भरी, और खीर भरने के बाद 22 रजब और मुरज्जब को आपने तकसीम की, जिसकी वजह से ये कोंडों का रिवाज चला। यानी खीर हजरत चावल और दूध मिलाकर खीर बनाई जाती है, और उस खीर को तकसीम किया, वहां से इसका सबूत हुआ, वहां से लोगों ने देखा तो यार इसके खीर के साथ पुड़ी भी होनी चाहिए, तो लोगों ने कोंडों का एहतमाम करना शुरू कर दिया। कोंडों का एहतमाम यहां से शुरू हुआ। तो पता ये चला कि अल्लाह वाले ये नबी औला जन्नत दे सकते हैं और जन्नत दिला सकते हैं। इसीलिए लोगों ने मानना शुरू कर दिया, लोगों ने उनकी नियाज करना शुरू कर दी। आज हम इनके लिए नियाज करेंगे तो कल हमारी सिफारिश, क्योंकि एक नियाज करना मतलब ये नहीं है कि खाली कूड़े या पुड़ियों पर खाली नियाज कर दी। नियाज करने का मतलब ये है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे दिलचस्पी रखते हैं, उनसे लगन रखते हैं। तो इसकी वजह से जो जिससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसका हश्र उसी के साथ हो। ये हमारा कूड़ों का मसला। और सबसे बड़े साइंसदान, दुनिया में सबसे पहला साइंसदान, सबसे बड़े साइंसदान हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं, जो सबसे बड़े साइंसदान। बहरहाल दरअसल बातें तो बहुत सारी हैं हजरत इमाम जाफर के साथ सादिक के बारे में, और कल 15वीं सब है। कुछ लोगों ने कुछ रिवायतों में आया है कि आपका शायद विसाल की तारीख है 15वीं, लोग ज़्यादातर उसमें आपको पूड़े करते हैं, पुड़िया करते हैं, और ये बड़ा बरकत महीना है रजबुल मुरज्जब जिसको कहा जाता है। इसे बुजुर्गों से भी निस्बत है और रब का भी इस पर है। और इसी महीने में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। जो सुबहान अल्लज़ी मैंने जो आयत करीम इस करीमा पढ़ी, उस आयत का ताल्लुक इस महीने से जुड़ा हुआ है। मस्जिद अक्सा का भी ताल्लुक इस महीने से जुड़ा हुआ है, मस्जिद हरम का भी। बहरहाल इसका इस मामले में गुफ्तगू अगली वीडियो में हम करेंगे। तो हाज़रीन नाज़रीन, आप इसको शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं कि आज इस बात से पता चल जाए कि कोंडे हम क्यों करते हैं और कहाँ से साबित हैं और किस लिए करते हैं, वजह क्या है करने की, क्या ज़रूरत है करने की। मसला मैंने बताया, सारी बातों का निचोड़ यही आया कि हम जिससे मोहब्बत करेंगे उसकी मोहब्बत हमें वहाँ पर, सरकार ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो नियाज करने का मकसद ये है कि हमें याद करना है कि हम हजरत इमाम जाफर से मोहब्बत करते हैं। कूड़े पकाना, अब ये भी नहीं हो कि साहब हमारे घर में आज की महंगाई का दौर है कि साहब वो नहीं है, बीबी ने लिस्ट बना दी इतनी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी के साहब वो 2.5 शेर ये होना चाहिए और 2.5 शेर वो पक्का कुंडे होने चाहिए। उनके नाम की न्याज किसी भी सूरत में अगर आप लगाना चाहते हैं, मोहब्बत करते तो कर सकते हैं। ये नहीं लाजमी नहीं है कि साहब वो 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो आटा और 2.5 किलो सूजी और 2.5 किलो ये मक्खन और 2.5 किलो ये, घर में आदमी की शोहर की दिहाड़ी है 50 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये, और 400 रुपये में मैं तुम्हें 2,500 का सामान कहाँ से लेके देगा। ये सब फजूल खर्ची है। बहरहाल जितना भी हो नियत के साथ, अच्छी नियत के साथ थोड़ा हो वही कबूल होता है अल्लाह की बारगाह में, जो सच्ची नियत के साथ अच्छी नियत के साथ किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस महीने का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। ये महीना मेराज का भी है, हमने आयत करीमा जो पढ़ी है इसका अगले मेराज के वाक़यात में बयान में हम इसकी तफसीर बयान करेंगे।
اور یہ مدرسہ جامعۃ الفاطمہ کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے، تو آپ حضرات اس میں اس کو سنیں اور شیئر کریں، اور جب شیئر کریں گے تو دوسروں تک پہنچے گا۔ اگر ایک پیغام ایک نے بھی سن لیا اور اس پر تھوڑا سا بھی عمل کر لیا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوستو بزرگوں، بس اس ویڈیو کو لائک کریں اور مدرسہ جامعۃ الفاطمہ کو پتہ کر کے رغبت حاصل کریں، اور اس میں آپ اس سے جڑیں۔ یہ ایک سنستھا ہے اور اس کے بعد ایک سوسائٹی بھی ہے، تو اب اس سے جڑیں اور اس سے مل کر کاندھے سے کاندھا ملائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔